Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today in grade 5 we will study the social study. Open the unit number 1. Our unit is the universe. First of all I will do the reading for you, then after that I will explain you about unit. The universe is very vast. The space, galaxies, stars, planet and all existing thing from the universe. The space is an open and empty place in which countless stars, planets and other heavenly bodies are floating. It seems that there is no end the space. The distance between one star and the other star is so greater it is impossible to describe it in ordinary word and figure. The distance in the universe are measured in light year. A light year is equal to the distance the light cover with its speed of about 300,000 km per second in a air. According to its scientists, the creation of universe result from a massive explosion about 15 to 20 million years ago. This is called Big Bang. The universe is the combination of millions of galaxies made up of matter. The Milky Way galaxy is one of these. It is the collection of billions of stars, gas and cloud of dust. According to the astronomer, the sun is the one of the billions of stars of Milky Way galaxy. 8 planets revolve around the sun. It is called solar system. The earth is a part of solar system. It is one of the 8 planets which revolve around the sun in their respective orbits. Okay student, first of all I will explain you about unit, then we will do more reading. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है जिसके अंदर आपके सारे स्टार्स, आपके सारे सैयारे, स्पेस और तमाम चीज़ें जो है वो किस में आती हैं? यूनिवर्स में आती हैं. अब ये तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जो हम कहते हैं 7, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं और सन है और मून है, ये सब, और स्पेस है जहाँ पे खला के अंदर स्काई, अर्थ, ये सब किस में आते हैं? यूनिवर्स के अंदर आते हैं. अब जो हमारे पास अगर हम दूर तक नज़र दौड़ाएं तो हमें यूनिवर्स का कोई एंड नज़र नहीं आता. हमें दुनिया का, कायनात का कोई भी एंड नज़र नहीं आता कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई. इसके अंदर काउंटलेस जो है वो क्या है? स्टार्स मौजूद हैं, यानी आप उन्हें गिन नहीं सकते. और जो दो डिस्टेंस बराबर, दो स्टार्स के अंदर जो डिस्टेंस है उसे आप किससे काउंट करते हैं, उससे किससे आप मेजर करते हैं? लाइट ईयर से. अब लाइट ईयर किसके इक्वल होता है कि अब एक साल के अंदर एक लाइट जो है वो जितना ट्रैवल करती है, दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर. अब साइंसदानों का क्या कहना है? साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन में तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर अगो ज़मीन के अंदर क्या होते रहे? बहुत ज़्यादा धमाके होते रहे. और ज़मीन इससे पहले क्या थी? बहुत बड़ा ह्यूज जो है वो गैस का एक बॉल थी और इसके अंदर एक्सप्लोजन होते रहे, यानी धमाके होते रहे. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुआ कि ये जितने भी गैलेक्सीज़ हैं, सितारे, सैयारे और ये सब जो है वो बनना शुरू हुए. अब उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा सोलर सिस्टम भी इसी तरह से एक गैलेक्सी का हिस्सा है.
और हमारे सोलर के सिस्टम के अंदर क्या है, 8 प्लैनेट हैं जो किस तरह, जो सन के अंदर क्या कर रहे हैं, जो सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब जो मूवमेंट है 8 प्लैनेट्स की सूरज के गिर्द, दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। नाउ आई विल डू द रीडिंग फॉर पेज नंबर 3. What is solar system? Solar system, our solar system is consist of 8 planets which revolve around the sun in their respective orbit. This system originated about 5 million year ago when a cloud of gases and dust began to spin. This gaseous material began to cool with the passage of time and appear in the shape of solar system. In the center originated the sun, while the circulating gas and dust become planet which begin to revolve around the sun. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम डिपेंड करता है, कंसिस्ट करता है 8 प्लैनेट और सूरज पे। और सूरज क्या है, इनके सेंटर में है और 8 प्लैनेट जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। सन, द सन इज अ ब्राइट स्टार. इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. द टेम्परेचर ऑफ इट्स आउटर सरफेस इज अबाउट 6000 centigrade. It is the source of heat and light for all the planets of solar system. सन हमारे पास क्या है, एक रोशन सितारा है और ये किससे मिलके बना हुआ है, ये 2 गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। और सूरज की जो लाइट है ये तमाम प्लैनेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है, इसकी वजह से आपके ज़मीन के ऊपर हरारत होती है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। फिर अगर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हरारत होगी तो ज़मीन के ऊपर जो है वो इंसान नहीं रह सकेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सूरज की जो मुनासिब रोशनी है, इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद है। आपके फसलों को पकने के लिए जो है वो क्या है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अब देखें, दिन और रात का जो बदलना है, अब जब सूरज ग़रूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तो रात में दिन बदल जाता है। फिर इसी तरीके से जब सूरज बाहर निकलता है, तुलू होता है दोबारा, तो हमारे पास रोशनी होती है हर तरफ और इस तरह पौधों को हरारत मिलती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो सनलाइट का होना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. Our Earth is one of these planets which revolve around the sun in 365 days and 6 hours. 6 hours after 4 years become 24 hours, due to which a day is added in month of February. This is called the leap year. अब planet क्या है? Planet जो तमाम सैयारे जो सारे के सारे किसके गिर्द मूव कर रहे हैं, सन के गिर्द मूव कर रहे हैं और उनका एक, और वो क्या करते हैं, सन से लाइट और हीट हासिल करते हैं। और हमारी जो ज़मीन है वो अपना सूरज के गिर्द एक अपना जो राउंड है या अपना जो एक एयर है वो कितने दिन में कंप्लीट करती है, 365 डेज और 6 आवर्स में। और हर 4 साल के बाद, आपने लीप ईयर का नाम सुना होगा। लीप ईयर किसको कहते हैं कि जब आपका फरवरी के मंथ में 29 डेज़ का जब आपका होता है तो उससे क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। अब हर 4 साल के बाद ये 24 आवर्स मुकम्मल हो जाते हैं और फेब में जो है वो फरवरी में एक दिन का इजाफा हो जाता है। इस तरह से वो 29 डेज़ का होता है, वो आपके पास लीप ईयर कहलाता है। अब
प्लैनेट्स का जो है वो नेम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस और नेपच्यून है। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि इनका डिस्टेंस कितना है सूरज से और ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रिवॉल्व करते हैं। द 9th planet of the solar system is Pluto, was eliminated from the list of the planets in 2006. All the planets included in the solar system move around the sun in their orbit, which are not quite circular. This movement of a planet is called a revolution. Each planet, besides moving around the sun, spins like a top around its own axis. This movement of planet is called rotation. Okay, student, अब इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में हमारे पास है कि एक हमारा 9th planet था, 9वां सैयारा, जो 2006 के अंदर प्लूटो वो एलिमिनेट हो गया था सोलर सिस्टम से और वो अपने ऑर्बिट से निकल गया था। अब जो प्लैनेट्स हैं इनकी मूवमेंट दो तरह की होती है। एक मूवमेंट आपके पास रिवोल्यूशन कहलाती है। रिवोल्यूशन जो प्लैनेट जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, वो आपके पास जो मूवमेंट कहलाती है प्लैनेट्स की, वो रिवोल्यूशन कहलाती है। और प्लैनेट अपने ही रोटेशन में खुद अपने ही एक्सिस में भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड रोटेशन। प्लैनेट अपने ही गेट जो है वो इस तरह से गोल गोल मूव करते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। सैटेलाइट, एस्टेरॉयड एंड meteors. Satellite is a moon which moves around its mother planet in the same way as the planet move around the sun. The earth has one moon while some planets have more than one moon. अब satellites क्या है आपके पास कि is a moon which moves around the, अब जितने भी आपके पास सैयारे हैं इन सब के अपने अपने कुछ मून्स हैं जो उसी तरह से मूव करते हैं इन सैयारों के गिर्द जिस तरह से ये सैयारे सूरज के गिर्द मूव करते हैं। और ज़मीन के कितने मून हैं? ज़मीन के एक मून है और और बाकी सैयारों के इससे कहीं कहीं ज़्यादा मून भी हैं, इससे कहीं ज़्यादा चाँद है। जो आपको नज़र आता है ना ज़मीन से चाँद, वो ज़मीन का अपना चाँद है जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है। Asteroids are the small planet in the solar system. They are mostly found between the Mars and the Jupiter. Most asteroids circle the sun. अब ये asteroids क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सैयारे हैं सोलर सिस्टम के अंदर और जो कहाँ ज़्यादातर किसके दरमियान पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के दरमियान में। और मोस्ट एस्टेरॉइड सर्कल द सन। अब ये क्या कर रहे होते हैं? इन्होंने काफ़ी सारे सैयारों ने क्या किया हुआ है? सूरज के गिर्द एक दायरा बनाया हुआ है। Meteors are very small pieces of rock and metal that float in the space. A meteor make a bright line in the night sky when it falls through the earth atmosphere. अब जितने जो पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, रॉक्स, चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो स्पेस के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, दे आर कॉल्ड मेटोर्स। मेटोर्स क्या करते हैं कि जब ये ज़मीन जब ये आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर कि एक आपको लाइट नज़र आ रही होती है और हम अक्सर सुनते भी हैं कि कोई सैयारे का टुकड़ा जो है वो आके ज़मीन पे गिरा है, ठीक है। तो जब ये ज़मीन के करीब पहुंचता है या ज़मीन की तरफ इसका रुख होता है तो हमें ये नज़र आना शुरू होती है इसकी एक ब्राइट लाइन, ठीक है।
Okay student, this was your unit. Now I will write the question answer for you on board. But the rest, now your level is up. अब आप grade 5 में हैं, आपने यूनिट को स्टडी करना है और आपने इसका MCQs वाला पोर्शन जो पेज नंबर 3, 5 और पेज नंबर 6 पर है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। यूनिट को स्टडी करेंगे और यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और बोर्ड पे लिख देती हूँ। व्हाट इज़ द यूनिवर्स एंड व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट। हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का, ठीक है। और इसके अलावा आपके यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सन, स्पेस, ये तमाम चीज़ें जो आपके यूनिवर्स में आती हैं। व्हाट इज़ अ लाइट ईयर? लाइट ईयर, द डिस्टेंस covered by a light in a 1 year is called light year. वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में कवर करती है वो लाइट ईयर कहलाता है। एंड हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स मेजर्ड? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स इज मेजर्ड बाय द लाइट ईयर। लाइट ईयर के थ्रू जो है वो हम दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार, गैसेस, क्लाउड एंड डस्ट। एंड हमारा जो अब विच गैलेक्सी डज आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू? वी हैव स्टडीज दैट मिल्की गैलेक्सी जो है उस पे हमारा सोलर सिस्टम बना है या उससे हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है। व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सन and the 8 planets moving around the sun is called solar system. और हमारे जो name the planets included in the solar system कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars and all the planets included. Describe the two movement of a planet. I have told you the movement planet around the sun is called, दो तरह की मूवमेंट होती है, एक रोटेशन है और एक हमारे पास रेवोल्यूशन है। रोटेशन क्या है? जो प्लैनेट अपने ही जो है अपने ही मदार में घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है? जो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। Okay, what do you know about the asteroid and meteors? Asteroids क्या है? स्मॉल प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के दरमियान में। और meteors क्या है? ये पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, your chapter is finished. I wrote question answer for you on board. Copy them on your notebook and rest exercises your homework. You have to do it yourself. Take care. Allah Hafiz. Note down the question answer from board. The universe is a combination of billions of galaxies made of matters, space, galaxy, star, planet and all things are included in it. Our second answer is the distance light cover in a air is called light year. And the distance between two stars is measured by the light year. Our third answer is the collection of billion of star, gases and cloud of dust is called galaxy. Our solar system belongs to Milky Way galaxy. And the fourth answer is 8 planets revolve around the sun is called solar system. The name of solar systems are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto and Neptune. Question number 5 answer is when movement of planet is around the sun in their orbit is called revolution.
Each planet moves like spins atop around its own axis. It is called rotation. The question number 6 answer is asteroids are the small planet in the solar system. They mostly found between Mars and Jupiter. And the meteors are the small piece of rock and metal that float in the space. I hope you understand the lecture and you have wrote down the question answer. Take care. Allah Hafiz.